Good morning, children. Today we are starting chapter 15, Introduction to Graphs. In chapter 5 we have read bar graph, histogram, pie chart, and earlier classes pictograph we have done. In this graph chapter we will study linear graph. Linear graph in your daily like newspaper, magazine, in daily situation we see this type of graphs. So we will study how to draw and how to read these graphs. In exercise 15.1 some graphs are given and you have to read this and answer the questions. This is not in our syllabus, we have deleted this. Though 3-4 questions we will discuss in live class so that you know how to read. So now we are starting exercise 15.2. Okay, before starting this, let's discuss some basic points. This linear graph is, in this graph we draw some points, like we'll draw some points and then we join these points by a line. We can join these points by line or dot. This will be a linear graphs. So to draw these graphs, first we'll draw how to plot the points. Points को जब हमने join करके ग्राफ बनाना है तो first हम learn करेंगे कि points कैसे draw करने हैं, ठीक है? अब for drawing these points, we need to study coordinate geometry. Coordinate geometry, this is new concept for you. Listen carefully. Coordinate geometry, this is a branch of mathematics in which we study how to locate or how to find the position of a point in a plane. Plane is, what is plane? Generally we call it XY plane, YZ plane. So what is plane? Plane is a smooth surface. Any flat smooth surface is known as a plane. Like while we draw bar graph and histogram, we make this XY plane, X-axis, Y-axis, this is horizon. This is a plane. Plane is a smooth surface. Clear? So we'll draw the points or we find the position of points in a plane. Now, in earlier classes we have read how to draw a point or number line, negative number, positive number, whole number, or rational number, decimal number, we can represent on the number line. The number line is a one-dimensional, only length. Now we'll find the position or we draw the points or position of a point in a two-dimensional. So, two-dimensional you can say surface. For example, if I ask you to find the position of an electricity board in the wall. वॉल पे एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पोजीशन फाइंड आउट करनी कि वो कहाँ पर है. या हमें सीलिंग पे जो है फैन फिट करना है, उस फैन की पोजीशन क्या है. या किसी वॉल पे एक वॉल हैंगिंग है या पेंटिंग है, उस पेंटिंग की पोजीशन फाइंड आउट करो. या अगर हमने कोई पेंटिंग लगानी है तो हम उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इस पॉइंट पे लगानी है, वो पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस. दिस स्टोरी इज गिवन ऑन पेज नंबर 241. René Descartes, he was a mathematician. Once he was lying on the bed and he saw an insect on the ceiling. And then he thought, how could I find the position of this insect? So this incident gave him idea to introduce this branch, coordinate geometry. The coordinate geometry is a branch of mathematics which deals with the position of point in a plane. Clear? Plane is a smooth surface. Smooth surface. So you can say this board is also a plane. The front face जो है board का, ये क्या है? Plane है because ये smooth surface है, surface है, two dimension है, इसकी क्या है? Length और breadth है. और ये flat है तो ये क्या है? एक plane. अब अगर मैंने एक point draw किया, this is a point. How can you find the position of this point? इस board पे इस point की position find out करनी है. How do you find the position? Approximate idea you can give. This is far from the vertical line, or this is in the center or near the horizontal line. Upper half में है, lower half में है, right में है, left में है, center में है. This approximate idea you can give, but exact position you can't find out. To find this exact position, we need to study this coordinate geometry. Clear? So basically
will find position of points. And we have read number line. अब नंबर लाइन वन डायमेंशनल होती है तो हम एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ये प्लेन क्या है, टू डायमेंशनल है, सो वी नीड टू नंबर लाइंस, वन वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल. एक हम वर्टिकल लाइन ले लेंगे नंबर लाइन और एक हम नंबर लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल. नंबर लाइन में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है 0, ऑरिजिन यू कैन से राइट टू 0, पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट टू 0, नेगेटिव नंबर्स. Same vertical line, number line, this neutral point is origin. Above 0, positive points, numbers, and below 0, there will be negative numbers. अब surface है टू डायमेंशनल, दैट मीन्स हमने टू नंबर्स लाइन ली. अब ये नंबर लाइन्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया, अगर इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो मैं इसको मेजर कर सकती हूँ. मैं स्केल से यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका डिस्टेंस मेजर करूँ. सपोज ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस मेजर करूँ, सपोज ये है 10 सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट दिस एज 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन. तो ये एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थी, इन लाइंस को हमने क्या किया, एज अ बेस लाइन कंसीडर किया और उन लाइन से जो है डिस्टेंस मेजर किया. ठीक है. अब सपोज आपकी कॉपी में अगर कोई पॉइंट ड्रॉ करे तो कॉपी में भी होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होती हैं डिफरेंट कलर्स की, उससे हम मेजर करके डिस्टेंस मेजर करके एक पॉइंट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. So to find exact position, we take this one horizontal and one vertical line as baseline, and then we measure the distance. So that means we need two lines, one vertical and one horizontal. So we are taking two number lines, one vertical and one horizontal. Now join these two lines. इन दोनों लाइंस को हमें ज्वाइन करना है, एक प्लेन फॉर्म करेंगे. अब इन नंबर लाइन को कैसे ज्वाइन करो, अगर हम दोनों नंबर लाइन को ज्वाइन करो, ये इंटरसेक्ट करें, आप कैसे भी कर सकते हो. ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर रही है और ऐसे भी इंटरसेक्ट कर रही है. एक्यूट एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज बना रही है, 90 डिग्री राइट एंगल बना रही है. कोई भी मेथड हो सकता है. ठीक है. अगर मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि दो नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल, दो नंबर लाइंस हैं, हमें इनको इंटरसेक्ट करना है, ऐसे ज्वाइन करो कि ये इंटरसेक्ट करे, तो कोई भी मेथड हो सकता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल. बट ये तो सबका पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो कंफ्यूजन होगी. अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया, सपोज ये पॉइंट है, अब यहाँ पे इसकी पोजीशन, हर केस में पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी. ये हम दोनों लाइन से इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दोनों लाइन से डिफरेंस जो एग्जैक्ट पोजीशन हमें फाइंड आउट नहीं पता चलेगी. तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या किया, एक पैटर्न सेट किया कि जब भी हम इन दो नंबर लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. जब दोनों लाइंस को हम यूज कर रहे हैं तो ये लाइंस क्या करेंगी, परपेंडिकुलर होगी. हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन. ठीक है. और जहां पे ये मीट करेंगी वो पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, O और ऑरिजिन. क्लियर. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नंबर लाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो नंबर्स लाइन को इंटरसेक्ट करना है और ऐसे ज्वाइन करेंगे कि वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है. जो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, O, एंड दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, ORIGIN. The point of intersection of two number lines is called origin. Clear? Now this horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis. Clear? This point is 0. In right there are positive numbers and left
there will be negative numbers. Above 0, positive numbers. Below 0, नेगेटिव नंबर्स. क्लियर? यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने क्या स्टडी किया? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो स्टडी कर रहे हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज टू फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन अ सरफेस. सरफेस इज 2 डायमेंशनल. तो हमने 2 नंबर्स लाइन ली, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. उन लाइंस को मीट किया, लाइंस को ज्वाइन किया कि वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. और नंबर्स ड्रॉ किए हैं. राइट में पॉजिटिव है, 0 के अबव पॉजिटिव है, लेफ्ट में और बिलो 0 नेगेटिव नंबर्स. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट. I told you this front face of board is a surface or plane. Plane है, smooth surface है, तो ये क्या है? Plane. Clear? अब you can see this plane is dividing this board into 4 parts. ठीक है? ये सपोज हमारे पास एक पेपर है. उस पेपर को अगर मैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लगाऊं तो वो क्या करेगा? उस पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो सेम इस प्लेन ने इस बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. 1 2 3 4. ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. What is quadrant? Quadrant means 4. Quadrant means 4 parts. So this, while we are joining these two number lines, these number lines are dividing, or this plane is dividing the, these number lines are dividing the plane into 4 parts. Each part is called quadrant. Clear? And what I told you, origin is where these two number lines intersect. These are important terms related to this. Okay. Now there are 4 parts. This rightmost part is called first quadrant. This is called first quadrant. Okay. Now, which one will be the second quadrant? How will you move? Anti-clockwise or clockwise? 4 parts है. First is called, this rightmost is first quadrant, because ये तो हम हमेशा ड्रॉ करते हैं जब भी हम बार ग्राफ हिस्टोग्राम ड्रॉ करें. ये हमारी प्रीवियस नॉलेज, तो हमने यहीं से स्टार्ट किया. ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है. अब हमने बाकी जो क्वाड्रेंट है उनकी नेमिंग करनी है. तो ये एक सेट रूल है कि जब भी हम क्वाड्रेंट की नेमिंग कर रहे हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth. These are the quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Clear? ये set rule है. आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते second, third, fourth. No. First rightmost and then move anti-clockwise. First, second, third, fourth. These are 4 quadrants. Quadrant is 4, 1/4 part you can say. ठीक है? Now this x-axis, y-axis, these axes are called coordinate axes. Clear? ax, is, this is singular, and ax, es, this is plural. X and y axis, both axes are called coordinate axes. This plane is called coordinate plane. And this complete system is called coordinate system. Now what is the role of this coordinate? Why we are using this word coordinate? This is a very important word. Coordinate is a term which is used to find position of a point. Suppose this is a point. Now you have to find position of this point. What you will do? Here I told you this is a point. Then we'll measure the distance of this point from vertical and horizontal lines, and then we'll find the position. ये horizontal line से 15 सेंटीमीटर है, vertical line से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. तो सेम वही करना है हमने
will draw perpendiculars on both the axes. इस पॉइंट से हम x एक्सिस और y एक्सिस पे perpendiculars ड्रॉ करेंगे. Now this point is 3 units from this origin. Horizontally इसका डिस्टेंस क्या है? origin से 3 units और vertically इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 2 units. So this will be the position of this point. Now you do not write centimeter, no. We are calculating in units. This point is 3 units at a distance of 3 units from the origin horizontally and 2 units from the origin vertically. So here we will write the position of this point, and this position is called, in terms we are writing the position is called coordinates. Here you can write it as 3, 2, or we can also write 2, 3. इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है. हॉरिजॉन्टल से कितना डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 यूनिट है, वर्टिकल लाइन से 3 यूनिट है. सो यू कैन राइट 3, 2 और 2, 3. अब अगेन ये कंफ्यूजन है 3, 2 और 2, 3. सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या डिसाइड किया कि जब भी हम किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे जहां वो पॉइंट जहां एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. अब ये पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस को कहां पे टच किया? 3 पे. तो फर्स्ट हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन हम लिखेंगे वाई एक्सिस को कहां पे टच किया परपेंडिकुलरली? 2 पे. सो ये जो मैंने इस पॉइंट की पोजीशन लिखी 3, 2, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट. क्लियर? किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो हमने फाइंड आउट करनी है वो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में करनी है. तो that's why we are using this word coordinate. Coordinate is term to tell the position of point. Clear? कैसे लिखते हैं coordinate? For writing position or for writing coordinates of a point, we use this open bracket or small bracket. You can say first we'll write x coordinate, comma, then we write y coordinate. X coordinate क्या है? जब भी किसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे जहां वो एक्स एक्सिस को टच करेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट है. ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट. और जहां वो वाई एक्सिस को टच करेगा वो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट. क्लियर? सो दिस इज coordinates of this point. At this point you can say this is point A. Then coordinates will be 3, 2. If you are writing 2, 3, it is wrong. ठीक है? 2, 3, 3, 2 दोनों ही है वैसे तो, बट क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाती है तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक रूल जो फिक्स कर दिया कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे. फाइन. और पैटर्न क्या है लिखने का? हमेशा ओपन ब्रैकेट्स यूज करनी है, स्मॉल ब्रैकेट, एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट. क्लियर है? ये तो है कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं. अब see in this plane there are negative numbers also. अब इनका भी तो कोई यूज होगा. तो ये जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर होगा जितने से यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट हम ड्रॉ करें इस कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में, इन पॉइंट्स का साइन क्या होगा? जैसे सपोज ये पॉइंट है, पहले लिखेंगे एक्स को कहां पर टच करा है? 4 पे. वाई को कहां पर टच करा है? 4, 1. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 1. अब यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स के साइन क्या होंगे? x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव. क्लियर? साइन ऑफ पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव. कैसे लिखते हैं? फर्स्ट x लिखते हैं, x भी पॉजिटिव है, देन y इज ऑल्सो पॉजिटिव. क्लियर? मीन्स अगर मैं बोलूं कि ये 3, 2 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपने इसके साइन देखने हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. अब सेकंड क्वाड्रेंट, सपोज ये कोई पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट की पोजीशन अगर हम फाइंड आउट करें, कोऑर्डिनेट्स अगर लिखें तो x और y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. ये x को टच कर रहा है -3 पे
और y को टच करा है +2 पे। So this is position of point x negative, y positive. That means इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे उसमें x हमेशा नेगेटिव होगा, y क्या होगा पॉजिटिव। तो इस में साइन जो होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? जैसे अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो, सपोज मैंने लिखा -5/2 1, ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये सिंबल्स हमें लर्न करने, साइन लर्न करने कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं। देन इजीली यू कैन टेल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है। तो साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव, y पॉजिटिव। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट? सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स और वाई एक्सिस पे। अब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट वी राइट एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स को कहां पे टच करा है, एक्स एक्सिस को -4 पे, कॉमा वाई को कहां टच करा है -4 पे। दिस इज पोजीशन ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स -4 -4। अब साइन कैसे है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे साइन होंगे नेगेटिव नेगेटिव। तो एक नंबर, एक पॉइंट जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, दैट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट, suppose this point is given, find the position, draw perpendiculars, x को किस पे टच किया 2 पे, y को किसको टच किया -2 पे। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। clear? So this will be the signs in quadrants. In first quadrant both positive, second quadrant x negative, y positive, third quadrant both are negative, and in fourth quadrant x positive, y negative. clear? यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हैं टू फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे हमने किसी प्लेन में अगर किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, दिस वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू स्टडी दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री we take 2 number lines, and when these number lines, so that they are intersecting at 90 degree, horizontal is called x-axis, vertical is called y-axis. This point of intersection of these 2 number lines called origin. These 2 number lines are dividing the plane into 4 parts. Each part is called quadrant, and rightmost is first quadrant. Then we move anti-clockwise, first, second, third, fourth. Now signs positive positive first, second negative positive, third negative negative, fourth positive negative. clear? Now this we have studied. If a point is given, then we can write the coordinates. Now if a point is given and you are to draw this, plot this point, plot these points. Point is given 2 3, -4 1. You have to plot these points. Now how can we plot the points? अभी तक हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया और उसकी पोजीशन फाइंड आउट, उसके कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इन कोऑर्डिनेट्स को, इस पॉइंट को हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हाउ कैन यू प्लॉट? See 2 3, and we know while coordinates are written, then this first is x coordinate and second is y coordinate. ठीक है? That means ये क्या है, x coordinate, और ये क्या है y। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जो भी पॉइंट होगा वो x एक्सिस को 2 पे टच करेगा, y एक्सिस को 3 पे टच करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सिस x एक्सिस 2 है, यहाँ 2 से हम लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और y 3 से ड्रॉ करेंगे। जहां ये लाइन से एक दूसरे को टच करेंगे, कट करेंगी, वो क्या होगा, पॉइंट। ये होगा हमारा पॉइंट 2 3। एक्स को कहां पे टच किया, 2 पे, वाई को किस पे टच किया, 3 पे। सो दिस इज पोजीशन ऑफ पॉइंट 2 3। क्लियर? यू कैन
and this point is A. Fine. पता चल गया कैसे प्लॉट करना है. अब -4 पर -4 फर्स्ट x कोऑर्डिनेट है, x नेगेटिव है. x कहाँ पे नेगेटिव होगा? सेकंड और थर्ड में. फर्स्ट में तो नहीं आएगा. y क्या है? पॉजिटिव. अब y पॉजिटिव किसमें होता है? सेकंड में. फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में. सेकंड के साइन क्या होते हैं? x नेगेटिव, y पॉजिटिव. ठीक है. तो पहले साइन का बताना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, तभी तो हमें पता चलेगा पॉइंट को कहां पे क्रॉस करना है. -4 1 दैट मींस x एक्सिस को -4 पे टच करेगा, y एक्सिस को 1 पे टच करेगा. तो x एक्सिस दिस पॉइंट इज -4 से और y इज इक्वल टू +1 से लाइंस ड्रॉ करो. जहां मीट करेंगी लाइन एक दूसरे को वो क्या होगा? पॉइंट -4 1 and this is point. This is how we plot the points. Clear? And okay, I told you origin, but now what are the coordinates of origin? इस origin के coordinates क्या हैं? अब coordinates जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं पहले x coordinate, फिर हम लिखते हैं y coordinate. ये पॉइंट O origin x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है? 0 पे. y एक्सिस को भी कहां पे टच कर रहा है? 0 पे. तो coordinates of origin 0 0. And please don't write 0. This is very common mistake. If I ask you to tell the coordinates of origin, then you will tell 0. Coordinates means ordered pair. Coordinates जब हम लिख रहे हैं टू, ये सब कुछ क्या चल रहा है? 2 डायमेंशन में. तो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो हमें पेयर में लिखना है. x की वैल्यू भी लिखनी है, y की वैल्यू भी लिखनी है. अब x क्या है? 0 और y भी क्या है? 0. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन 0 0. क्लियर? देन दिस x कोऑर्डिनेट क्या है? जहां भी पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं x एक्सिस को टच कर रहा है वो क्या है? x कोऑर्डिनेट. x की वैल्यू जो है वो x कोऑर्डिनेट है. सेकंड नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट इज abscissa and second name of y coordinate is ordinate. Clear? These are the second names. X coordinate is also called abscissa and y coordinate is called ordinate. Now today we are not starting exercise 15.1. You just watch this video and try to understand this coordinate system, because if you don't understand this you will not able to do these exercises. Fine. So today you have to just watch the video. Written material I will send you what to write and how to write. You watch this video and try to learn it.